Assalamu alaikum students. Welcome to this week's lab session for your DLT subject, and its title is Implementation of XOR and XNOR gates using NAND gates only. I have specified here that you are going to implement both of these Boolean expressions using only NAND gates. So I will try to discuss in detail that why I have specified the NAND gates only and what's special about this gate. So I will discuss this in a while. The first thing that you need to know that the relevant ICs will be obviously the 7400 NAND gate IC and the virtual breadboard available in your multisim, right? And I have presented here the symbols for XOR and XNOR. This is XOR and this is XNOR, and here is the symbol of NAND gates, right? And I have written a line here: the digital circuits are more frequently constructed with NAND and NOR gates compared to AND and OR gates. So there must be something special about these NAND and NOR gate ICs that we can actually achieve whatever we wish to desire, uh, whatever we wish to implement using these AND, OR, and NOT combinations, right? So I will try to explain this in more details. According to our understanding, the NAND and NOR, both of these are basically universal gates. And universal gates means that we can actually achieve the combination of AND, OR and NOT using these universal gates. तो implement हम अगर AND, OR and NOT को करें तो उनमें obviously there must be some problems that we wish to move on to the NAND and NOR gates or the universal gates. तो और secondly एक ये चीज़ भी important है that either we can achieve the AND, OR and NOT operation using the NAND and NOR ICs or not. तो उसके लिए हमें पहले इसकी थोड़ा सा थियोरेटिकल बैकग्राउंड हम इसको देखना पड़ेगा और इसको हम प्रैक्टिकली प्रूव भी करेंगे इन दिस एक्सपेरिमेंट. तो हम ऑलरेडी हमें पता है कि हमारे पास एंड और एंड नॉट गेट्स जो हैं ये हमारे पास फंडामेंटल गेट्स हैं, एंड इन गेट्स के जो ऑपरेशंस हैं इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं. वी आर एक्चुअली क्लेमिंग दिस फैक्ट दैट we can actually replace the requirement of AND or not or the fundamental gates using the universal gates. तो specifically इस lab में we are focusing on NAND gates only. NOR gates की implementation को आप खुद भी assume कर सकते हैं after you understand that how you can actually achieve any Boolean expression with the help of NAND ICs. तो XOR के बारे में यहाँ पर जिक्र है. XOR IC के अंदर या XOR गेट के अंदर जो हमारे पास एक्चुअली बुलियन एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट हो रही होती है दैट इज़ इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट y प्लस x डॉट y कॉम्प्लीमेंट. तो ये हमारी बेसिक XOR गेट की बुलियन एक्सप्रेशन है. वी ऑलरेडी नो दैट जो हमारे पास फंडामेंटल गेट्स हैं एंड और एंड नॉट, इनके अलावा बाकी सारे जितने भी गेट्स हैं दे आर एक्चुअली made by the combination of these fundamental gates. तो इसके अंदर भी obviously हमें नज़र आ रहा है कि there are three basic operations. two इसके अंदर and operations हो रहे हैं, two not operations हो रहे हैं and one or operation हो रहा है. तो हम actually ये find out करना चाह रहे हैं कि ये 5 operations जो हैं NAND gates से किस तरह से replace हो सकते हैं and why NAND gate are the universal gates. तो सबसे पहली चीज़ ये कि SOPs या sum of product forms में मैंने आपको previously ये चीज़ already बताई है that सबसे पहले हम NOT operation perform करते हैं and after that we perform the AND operation and in the end we perform the OR operation. So इसके अंदर हम सबसे पहले AND operation perform करने equation हम यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं.
एफ इक्वल्स एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। तो इसके अंदर सबसे पहले हम एक्स बनाते हैं। अभी हम इसका सिर्फ सर्किट डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये क्लेम किया दैट एक्स हमने एक नैंड गेट में अप्लाई करना है और हमें तब तक आउटपुट अचीव नहीं होगी जब तक हम नैंड गेट की सेकेंड, वी ऑलरेडी नो दैट नैंड गेट की दो इनपुट्स होती हैं, राइट। नैंड गेट की दो इनपुट्स होती हैं एंड एक उसकी आउटपुट होती है। एंड आउटपुट एक्चुअली कर क्या रही होती है, एक्स डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट अचीव कर रही होती है। या अगर हम एक्स और वाई के बजाय अगर हम कोई सेपरेट वेरिएबल ले लें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि एक्स और वाई हमने स्पेसिफिकली फॉर दिस डिज़ाइन मेंशन कर दिया है। ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक हो गया। नाउ आई गॉट एक्स एज द फर्स्ट इनपुट। व्हाट शुड बी द सेकेंड इनपुट? ऐसी कोई इनपुट होनी चाहिए कि जो हमें आउटपुट के ऊपर एक्स का कॉम्प्लीमेंट दे दे। तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो ये हो सकता है कि हम एक्स को डॉट कर लें 1 के साथ। तो क्या आउटपुट के ऊपर एक्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा या नहीं आएगा? Yes, anything ended with 1 we get the same thing। तो हमारे पास अगर x को हम 1 के साथ एंड कर रहे हैं या डॉट कर रहे हैं तो आउटपुट के ऊपर हमें x ही अचीव हो जाएगा। सो आउटपुट विल बी x कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम लॉजिकल 1 यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं सेकेंड इनपुट पे तो वी विल गेट x कॉम्प्लीमेंट। तो एक चीज़ तो एक तरीका तो आपके पास ये हो सकता है कि आप इनपुट के ऊपर एक लॉजिकल 1 ऑपरेशन फिक्स रख लें। सेकंड एक और बेहतर तरीका भी ये है दैट आपको लॉजिकल हाई वैल्यू लेने के बजाय आप थोड़ा सा फर्दर एक और ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की तरफ जाएं। एंड व्हाट इज़ दैट अगर हम सेकंड इनपुट को x ही ले लें, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सेकंड इनपुट जो है वो x ही है, तो क्या हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट अचीव हो जाएगी या नहीं? इस गेट का साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं सो दैट मेरी ड्राइंग में प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड इनपुट को अगर हम x ही ले लें तो विल वी रिसीव x कॉम्प्लीमेंट और नॉट? हम कहना ये चाह रहे हैं कि x डॉट x का होल कॉम्प्लीमेंट लें तो विल इट बी x कॉम्प्लीमेंट और नॉट? तो हम एक रफली एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं टू फाइंड आउट कि x को अगर हम x के अंदर लेट सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है x और उसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 और 1 है। सिमिलरली हमारे पास अनदर x है और उसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस भी 0 और 1 ही हैं। तो हम आउटपुट के ऊपर इनको देखते हैं कि इनका डॉट ऑपरेशन x ही रिसीव हो रहा है या नहीं। 0 डॉटेड विद 0 वी गेट 0, 1 डॉटेड विद 1 वी गेट 1। So this is another x we are achieving। इसका कॉम्बिनेशन भी एग्जैक्टली वही है जो कि हमने इनपुट के ऊपर प्रोवाइड किया हुआ। सो दिस इज़ अनदर सोल्यूशन दैट अगर हम x को ही एज अनदर इनपुट ले लें इसी नैंड गेट की तो वी विल गेट आइडियली गेट x कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो यहाँ तक हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि नॉट ऑपरेशन तो यूजिंग नैंड गेट हो सकता है। सिमिलरली हम y का भी नॉट ऑपरेशन कर सकते हैं लाइक दिस y कॉम्प्लीमेंट। अब हमें x कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट टर्म बनानी है और ये हमारी सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म हमने बनानी है तो उसके लिए हमें x कॉम्प्लीमेंट तो हमने अचीव कर लिया, इसको डॉट करना है y के साथ। तो यहाँ पर अगर हम एक और नैंड गेट लगाते हैं, क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया कि नैंड गेट के अलावा तो हमने कोई भी आईसी यूज़ नहीं करनी। तो लेट्स सी कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। इसकी आउटपुट विल बी x कॉम्प्लीमेंट डॉट y का होल कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज आइडियली क्या हो रहा था, a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट हो रहा था इसकी आउटपुट के ऊपर। तो a में हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट पड़ा हुआ है और b में हमारे पास y पड़ा हुआ है। तो इन दोनों को डॉट करने के बाद उसका होल कॉम्प्लीमेंट ले रहा है। तो अभी तक इनपुट के अंदर जो फर्स्ट टर्म थी इसके अंदर फर्स्ट टर्म से सिमिलर एक चीज़ अचीव हो गई है, बट हाउएवर दिस कॉम्प्लीमेंट इज़ समथिंग वी डोंट वांट। तो इसको हम रेक्टिफाई एंड पे करेंगे, पहले हम अपनी सेकंड टर्म बना लें। तो सेकंड टर्म के अंदर हमारे पास x y कॉम्प्लीमेंट तो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया।
एक्स कॉम्प्लीमेंट रह गया, एक्स रह गया। तो इस एक्स के साथ हम इसको डॉट करते हैं यूजिंग नैंड गेट। तो इसकी आउटपुट के ऊपर अचीव हो रही होगी एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो एक तरीका तो ये है कि हम इस कॉम्प्लीमेंट को यूजिंग अनदर नैंड गेट रिमूव कर दें, because this NAND gate will actually cancel out this complement operation, because ये एज अ नॉट गेट एक्ट कर रहा होगा। बट एक और तरीका भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक और NAND गेट अप्लाई करते हैं इन दोनों की आउटपुट्स के ऊपर, तो लेट्स सी इसकी आउटपुट क्या बनती है। इसकी आउटपुट कुछ समथिंग लाइक दिस बनेगी, एक्स कॉम्प्लीमेंट यानी ये हमारा ए है और ये हमारा बी है अकॉर्डिंग टू दिस गेट। तो ए के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ था एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, राइट, डॉट एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। इन दोनों का डॉट ऑपरेशन हो रहा है और इन दोनों के अक्रॉस भी अगेन, अगर मैं यहाँ थोड़ी सी लार्जर स्पेस के ऊपर इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करूँ कि हमने इनिशियली ये एज्यूम किया है कि ए में पड़ा हुआ है एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट एंड बी में हमारे पास पड़ा हुआ है एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एंड अभी जो हमारे पास एफ रिसीव हो रही है आउटपुट, दैट इज़ इक्वल टू ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर f इक्वल्स टू ए डॉट बी के अंदर ये वैल्यूज़ इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँ तो व्हाट डू आई गेट f इक्वल्स ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, और इनका भी होल कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, यानी डॉट होने के बाद होल कॉम्प्लीमेंट भी तो हो रहा है ना, दिस वन। तो अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करूं यहाँ पर, तो इस डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि ये जो डॉट ऑपरेशन है इनके दरमियान, दिस विल बिकम an OR operation and this complement will be cancelled out with this not operation, यानी कि इनका भी तो नॉट हो रहा है ना, तो इनका नॉट जब होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। so this will become, our equation will become something like this, f equals x complement dot y, ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो गया इस होल कॉम्प्लीमेंट के साथ, यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट था, एंड ये डॉट बन गया प्लस एंड वी गेट एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। तो इज दिस इक्वेशन वेरी सिमिलर और एग्जैक्टली द सेम टू दिस ओरिजिनल इक्वेशन जो हम रिसीव करना चाह रहे थे? एग्जैक्टली इट इज़ द सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर इस इंटरमीडिएट जो नॉट ऑपरेशन आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, इनको रिमूव करने के लिए अलग से नैंड गेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस सिंगल नैंड गेट विल एक्चुअली कैंसल आउट these both of these not operations, and also वो दरमियान में जो हम और ऑपरेशन करना चाह रहे थे बोथ टर्म्स का, वो भी वो अचीव कर लेता है। सो एक्चुअली हमारे पास जो इक्वेशन है वो एग्जैक्टली सेम बन गई है जो हम अचीव करना चाह रहे थे, और हमने ये भी प्रूफ कर दिया दैट हम इस इक्वेशन को, जो कि बज़ाहिर एंड और एंड नॉट ऑपरेशन से परफॉर्म होनी चाहिए थी, बट उसको हम अगर सिर्फ नैंड गेट्स यूज़ कर रहे हैं यूजिंग ओनली 5 नैंड गेट्स, यहाँ पर कितने नैंड गेट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो ओनली 5 नैंड गेट्स हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये सर्किट इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ इम्पोर्टेंट ये है दैट वाई हमें फ़ायदा क्या हुआ, नैंड गेट्स का हमें फ़ायदा क्या हुआ। फर्स्ट तो हमें ये नज़र आ रहा है कि हम अगर एंड और एंड नॉट के साथ अगर इसको हम परफॉर्म करते इसी इक्वेशन को, तो वो सर्किट कुछ इस तरह का बनता
एक्स एंड वाई, राइट। एंड इन दोनों के साथ हम पहले एंड एक गेट लगाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हम इसके साथ और एंड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिसीव हो रहा है एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई, और इन दोनों को हम एंड पर और कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमें दो नॉट गेट्स चाहिए, दो एंड गेट चाहिए और एक और गेट चाहिए। बट हाउएवर अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज़ दैट हमें आईसीज कितनी चाहिए। आईसीज हमें चाहिए 3 आईसीज। एक नॉट की आईसी चाहिए, एक एंड की आईसी चाहिए और एक और की आईसी चाहिए। बट इन दिस केस हमें कितनी आईसीज चाहिए? जो हमने ये सर्किट इम्प्लीमेंट किया, इस सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 नैंड गेट्स यूज़ हो रहे हैं। तो इसके अंदर हमें सिर्फ 2 नैंड गेट की आईसीज चाहिए। एक आईसी के अंदर 4 गेट्स हैं, तो हमें 5th गेट के लिए ऑब्वियसली एक और आईसी चाहिए होगी। तो हमें 2 नैंड गेट की आईसीज चाहिए। तो इससे हमने ऑप्टिमाइजेशन, हमने अपनी स्पेस थोड़ी रिड्यूस कर ली, सर्किट थोड़ा सा छोटा हो गया, स्पेस रिड्यूस हो गई, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई, एंड ऑल्सो हमने अपना सर्किट ऑप्टिमाइज़ कर लिया। और सेकंड थर्ड लास्ट थिंग इज़ व्हाट, कि अगर हम 3 डिफरेंट आईसीज़ की बजाय सिर्फ हम 2 सेम आईसीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हम एनर्जी कंजम्पशन भी कर लेते हैं, बिकॉज़ हमें उन तीनों आईसीज़ को ड्राइव करने के लिए पावर अलग से अप्लाई करनी पड़ी थी। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 आईसीज़ को ड्राइव करना है, और इसके लिए हम अपनी पावर भी कम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें नैंड गेट या यूनिवर्सल आईसीज़ यूज़ करने का काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो ये आप फ़ायदे इसको फर्दर अगर आप यूजिंग नॉर गेट्स इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कि अगर हम उसी सर्किट को यूजिंग नॉर गेट्स इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ अप टू यू दैट आप इसको किस तरह से देखते हैं। सेकंड चीज़ जो आपकी है, फर्स्ट तो आपने एक बना लिया एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई डॉट प्लस एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। सेकंड आपने एक्स नॉर इम्प्लीमेंट करना है। इसकी इक्वेशन किस तरह से है, दिस वन, F2 कर लें इसको। दिस इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई। एंड इसका ये हम इक्वेशन कहाँ से डिराइव की? ट्रुथ टेबल से। ट्रुथ टेबल इज समथिंग लाइक दिस, एक्स वाई एंड F2 हम यहाँ अचीव कर रहे हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और लास्ट कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है, क्योंकि बेसिकली एक्स नॉर होता क्या है? एक्स नॉर इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स और। तो एक्स और का जो भी ट्रुथ टेबल था उसका ऑब्वियसली ये कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन एक इसके क्रॉस बनेगी और एक इसके क्रॉस बनेगी। यहाँ पर बोथ एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पर एक्स वाई है, और इन दोनों को के दरमियान हमें और ऑपरेशन करना है अकॉर्डिंग टू सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई। So what's your objective? Your objective is to implement this XNOR equation on your own. आप देखेंगे कि आपको कितनी गेट्स इसके लिए रिक्वायर्ड है और आप कितनी ऑप्टिमाइजेशन अचीव कर सकते हैं। तो ये दोनों टास्क मैंने यहाँ पर स्लाइड्स में भी मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने एक्स और के लिए इक्वेशन लिखी हुई है, राइट। इसको मैंने आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो आपने देख लिया। एंड यहाँ पर मैंने एक्स नॉर के लिए भी आपको सेकंड टास्क दी हुई है, दैट आपको इसको देखकर मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट करना है। और मल्टीसिम में आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। अब तक ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई हैं दैट आपको यूजिंग मल्टीसिम किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। दैट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि आपको 5 गेट्स चाहिए नैंड के। तो उसमें हमें
कितनी आईसीज चाहिए? एटलीस्ट 2 आईसीज चाहिए। और NAND 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। आप 4 गेट्स इसमें से यूज़ करेंगे, 1 गेट इसमें से यूज़ करेंगे। 1 2 3 फर्स्ट गेट आपका यहाँ पर है, सेकंड गेट आपका 4 5 और 6 पर है, और थर्ड गेट आपका 10 9 और 8 पर है, लाइक दिस। और यहाँ पर आपके पास है 13 12 और 11 पर लास्ट गेट है। तो आपने उनको कनेक्ट आपस में किस तरह से करना है, यू ऑलरेडी हैव दैट कॉन्सेप्ट। एंड इनकी आउटपुट्स को आप नेक्स्ट NAND गेट की जो आईसी है 7400, बोथ 7400, आपने इनको इंटरकनेक्ट करने के बाद जो आउटपुट आ रही होगी उसको अपने एलईडी के साथ कनेक्ट करना है। एंड आपने प्रूफ करना है कि आपका जो ट्रुथ टेबल था दिस वन एक्स और का, वो अचीव हो रहा है या नहीं। दिस वन आई थिंक वो ट्रुथ टेबल मैंने रिमूव कर दिया, वो मैंने आप बहरहाल स्लाइड्स में भी मेंशन किया हुआ है। दिस इज़ योर ट्रुथ टेबल फॉर एक्स और, इसको आपने प्रूफ करना है। एंड सिमिलरली एक्स नॉर का जो ट्रुथ टेबल है उसको भी आपने प्रूफ करना है, राइट। So this is going to be your task for today, and I hope that we can discuss any queries related to this experiment in your coming up lab session. I'm going to now end this session. Allah Hafiz.